Any doubt in this specific heat? नहीं सर. The amount of heat required to raise the temperature of unit mass of the body. अगर ग्राम में है तो ग्राम में लो, किलोग्राम है पर किलोग्राम है तो पर किलोग्राम लो. So if a body has very high specific uh, capacity, what does it mean? If it has a very high specific heat, it will take a lot of heat to change its temperature. And if there is a material which is being characterized as a material which has low specific heat capacity, will take very little heat to raise its temperature. So units can be calories per gram per centigrade or joules per kilogram per centigrade. Calorie per gram per centigrade, joule per gram per centigrade. This has nothing to do with change of state. This is everything to do with just change of temperature of the body. If the state changes, बर्फ पानी में बदल गई और पानी भाप में बदल गया, that's a different thing. This is not that heat we are discussing. इसमें कंडीशन ये है कि the state does not change. Right? So if you have water, very famous example, water की specific heat कितनी होती है? 1 ग्राम पानी को 1 डिग्री टेम्परेचर बदलने के लिए 1 कैलोरी चाहिए होती है. बस. That's all. So external condition is 25 degree पे. If you have 1 gram of water available with you and you want to change its temperature by 1 degree, delta T, then you need 1 calorie. If you have ice, ice needs only 0.5 calorie to change its temperature by 1 degree at 25 degree external condition. But if you have steam, for example, steam needs 0.48 calories to change its temperature by 1 degree. But state वही है. अभी जो हम पढ़ रहे हैं उसमें चेंज ऑफ स्टेट कहीं भी नहीं आया था. तो स्टेट चेंज अलग टॉपिक होता है, जो उसमें बोलते हैं वो कैलोरीमेट्री के अंदर चेंज ऑफ स्टेट. स्पेसिफिक हीट जो होती है वेपराइजेशन और फ्यूजन वाली होती है, ये वाली नहीं होती है, एमएस थीटा वाली. So let's take an example. Okay, example of Q is equal to mass. कुछ लोग इसको S लिखेंगे जैसे एनसीईआरटी ने लिखा है, कुछ लोग इसको M इंटू सी इंटू डेल्टा टी लिखेंगे. ये स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपकी मर्जी है, जो मर्जी लिखो. तो यू आर गिवन अ सिल्वर bar, okay, and the silver bar is the temperature is risen by delta T is given to be 10 degrees. Okay, and how much heat does it absorb? It absorbs around 1.23 kilojoule. And the mass of the silver bar is given to be 525 grams. This is what has happened. It absorbed this much heat. The temperature rose by 10 degree. Its mass was this. Question is, what is the specific heat of capacity of the silver? Silver as a material की क्या है? तो obviously Q is equal to M into C into delta T. And this is 1.23 into 1000 is equal to 525 converted into kilograms into C, which you have to find for silver, into delta T, which is 10. Doesn't matter 10 Kelvin है या 10 degree है, delta T है बस, that's all. So you can find C silver is equal to 1.23 into 1000 divided by 525 into 10. Calculate this and that will give you your specific heat of silver. As a material, you will come to know what is the specific heat of a silver. That how many
joules of energy it needs to convert into, to raise its temperature by 1 kilogram of silver will need how many calories to raise its temperature by 1 degree? Any doubts in your mind? नहीं. Straightforward ms theta. Okay? Material specific. Okay. So let's take an example. Example number 2. So you are given a drilling machine and the power of the drilling machine is 10 kilowatt, which means it consumes 10 kilojoules per second of energy. Okay. And what you're doing is you are drilling a hole in a small aluminum block. So there is an aluminum block. This is your aluminum block, and you're using your driller to create a hole in this. Okay. Now the block is of 8 kgs, and you have to find that after when the time elapse of 2.5 minutes, due to this drilling, continuous drilling, the temperature of the block will raise. Okay, and you have to find how much is the rise in temperature. Obviously, heat supply has to be there. So the assumption is that a part of the joules being delivered to the block, 50% of that is being used to heat up the block. And 50% is नहीं. being used to do the mechanical work of drilling the machine. It is given that the specific heat of aluminium is 0.91 joules per gram per डिग्री. ऐसे भी लिख सकते हैं, पर डिग्री भी लिख सकते हैं, एक ही बात है. ग्राम पर डिग्री लिखो वो भी एक ही बात है. ऐसे भी लिख सकते हैं इकट्ठे. Okay, so you have to find what is the rise in temperature of this block. Now you know you're supplying energy every second. You're supplying 10 kilojoules of it, right, to create the whole. But out of this, the one which is used, percentage used for heating the block is 50%, right? So every second, 5,000 joules out of 10,000 joules are going out every second, per second basis, right? To heat it. And you know, you have supplied it for 2.5 minutes. So the total energy being used up by the aluminum to heat up is 150 second multiplied by 5,000 joules per second. So this is the total joules now available to aluminum to heat up. So you know delta Q, which has been supplied to this. So delta Q is equal to M, mass of the block, which is 8 kilograms. So 8,000, क्योंकि इन्होंने यहाँ पे पर ग्राम लिया तो मैं 8,000 कर देता हूँ. जूल्स लिया तो ये तो मेरे जूल्स ही हैं. एस एल्यूमिनियम का एस सी निकालना है शायद इसके अंदर. या नो, स्पेसिफिक हीट इज गिवन 0.91. You have to find the raise in temperature. So 0.91 into delta T. This is C, small c. This is the 8,000 is the mass. MC delta T. Delta Q is the total heat which it got from the drilling machine, a part of which 50% of which, so 10,000 kilojoules का आधा ले लिया हमने. So 75 into 10 raised to power 4 is equal to 8,000 into 0.9 into delta T. You can find the delta T. How much is the temperature rise of this aluminum block when you're drilling? Any doubts in your mind? नहीं. No change in state, nothing, solids getting heated up because of supply of heat, and they have a fixed specific heat available to them. So let's take another example. So you have a example of a geyser, right? And the geyser heats water flowing. There is a geyser and there is a water flow, which is 3 liters
per minute. Okay. So this is the rate at which the water flows inside the geyser, and the temperature of the geyser water rises from 27 degrees to 77 degrees. And so this is your geyser. Okay, then the rate. Now this is not an electric geyser, but a thermal geyser, which means if you have to keep this geyser on your gas. Gas burner supplies it some heat because of combustion of fuel, and the fuel consumption which is available to heat this geyser water is to the tune of 4 into 10 raised to power 4 joules per gram. So this is the rate at which the heat is being burnt, okay, per gram basis. You have to find the rate of combustion of fuel, the rate, which means per minute basis, how much fuel will be consumed to achieve this heating effect of this much water. So the heat being supplied is Q, which is given to be 4 into 10 raised to power 4. So this is fuel combustion per gram basis. So you have a burner, you have a tumbler or a heater, जो भी नाम रखना है उसके अंदर. The water is flowing at the rate of 3 liters per minute, which means every minute 3000 centimeter cube of water is getting 3 liters, 3000 centimeter cube, density is 1, so 3000 grams. 3 किलो पानी इसके अंदर गर्म हो रहा है 1 मिनट में, राइट? और ये गर्म होने से टेम्परेचर इतना बदल रहा है. So you know per minute how much water is getting heated up, how much is the change in temperature of the water, and you know how much is per gram basis the fuel which is getting burnt. You have to find the fuel burning, uh, but per second basis, right? Which is time, rate of burning of fuel. This is what you need to find out. तो ये पानी है जो, तो you know anyway the formula is Q is equal to M into specific heat of water into change in temperature of water and the mass of the water. So heat which is being supplied to you uh, is 4 into 10 raised to power 4 joule per gram. Okay, and if you are, this is a rate at which the fuel is burning. And you have to, mass of the water is given to you, it's 3000 grams per second. Okay, specific heat of water is 1 gram per centigrade, 1 calorie per centigrade. तो कैलोरी को भी मैं अगर कैलोरीज में रख लेता हूँ. Okay, and so this is C of water is 1 calorie per centigrade per gram. Delta T is 50, and this is the rate at which the heat is coming from the burner, you know. And since I have a per second here, so this also is not going to be Q, but per second basis actually. Okay. So Q जो आपके पास आएगा, Q per second, पानी को 3000 ग्राम पानी 1 मिनट में है, सॉरी, तो 60 सेकेंड्स लिखना पड़ेगा हमको. So we are actually saying 50 calories per second multiplied by 1 into 50 is equal to 2500 calories is being supplied on per second basis to the water. But this is the rate at which the fuel is being burnt on per gram basis. So we have to establish a link which is mass
and one is the fuel supplying an heat of 2500 calories per second. Now, how do you establish this? This is joules per gram, and we have calculated 2500 calories per second. अगर ये जूल है और एक कैलोरी है तो पहले तो इनको ठीक कर लेते हैं थोड़ा सा. 2500 into 4.2 joules per second. Okay. So one is your rate, which is हमें पता लगाना क्या है फिर यूनिट में. Okay, yeah. So how much when I say the fuel combustion का rate, I mean how many grams per second. I know fuel burning is happening at Q, which is 4 into 10 raised to power 4 joule per gram. If it is in per gram basis, otherwise on time basis it is mass basis, time basis, it is 2500 into 4.2 joule per gram per second. If I do QT by QM, I will get 2500 into 4.2 joule per second divided by 4 into 10 raised to power 4 joule per gram. So gram ऊपर चला जाएगा, second नीचे आ जाएगा, and this will give me grams per second. So the rate at which fuel is burning, gram per second basis आ गया. थोड़ी सी मैथ्स थी, कुछ भी नहीं था. कैलकुलेशन. अप्लाइड था, थोड़ा सा वो था, मतलब कैसे आपको वो हीट सप्लाई जो है फ्यूल बर्निंग की टर्म्स में डाल दी कि फ्यूल फ्यूल द रेट ऑफ कंबशन ऑफ फ्यूल will be gram per second, whereas the heat of combustion is joule per gram. So you the only thing is how do you interpret if they say calculate the rate of combustion of fuel. अच्छा rate of combustion of fuel क्या भाई? भाई it's gram per second. कितना फ्यूल बर्न हो रहा है हर सेकंड, तेल कितना खर्च हो रहा है एक सेकंड में, दैट्स ऑल. Second, let me go to the next page now. So the concept of mechanical equivalent of mechanical equivalent of heat. ये सुना है कभी? The mechanical equivalent of heat. नहीं. Okay. So see, heat is converted into work done, अच्छा. right? So what is the ratio of this? That when the heat is converted into work done, then the work done upon Q is equal to J. The ratio always remains the same. The ratio of the uh, work done to heat produced is always same, and this is called Joule's law. जूल्स लॉ. द. Yes. So work अच्छा. done is given by J into Q. So this is interconversion of the concept of Q and work done. How do you link a joule of so if there is a heat thermal energy available to you and it is able to do some work, how will you convert that heat into let me just give you, क्योंकि मुझे लगता है ये वैसे कॉमन सेंस वाला है. Let me just have a look, क्योंकि ये what I remember is it's nothing but heat is measured in calories and the work done is in joules. So the conversion of 1 calorie is equal to 4.2 joule is what is referred to as mechanical equivalent. So 4.2 is the mechanical equivalent of heat. जो conversion होती है ना, 1 calorie is equal to 4.2 joule. That concept is the
is known as Joule's law, the mechanical equivalent of heat. So he did an experiment where he was able to establish this equivalence कि कैसे आप okay, yeah, so let's just read this through. कई जगह पे मैंने यूज भी करा है इसको अभी कैलोरी और उसमें आई थिंक ये वही है कोई नो रॉकेट साइंस द मैकेनिकल इक्विवेलेंट सर ऑफ रॉकेट साइंस हीट में से कुछ होता भी है कोई सब्जेक्ट? हाँ होता है अच्छा। मैकेनिक्स में भी होता है वेरिएबल मास वाला होता है और वैसे जो इसरो वाले हैं वही पढ़ते हैं उसको अच्छा। कंट्री का डिफेंस और काफी सारा इस रॉकेट साइंस पे डिपेंडेंट होता है ओके द मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट the mechanic heat equipment provides a method of determining the mechanical equivalent of okay in thermodynamics two forms of energy transfer happen between system and surrounding can be the heat and work is the equivalent of the force acting while heat is the energy transfer due to ठीक है work involves non-random movement heat involves a random movement mechanical work and heat are different aspects of same quantity energy okay in the experiment mechanical energy from friction is converted into thermal energy. The mechanical equivalent of heat is defined as J is equal to W by Q. हाँ ये एक्सपेरिमेंटल सेटअप है इसका ये इसने करा था जो अपने जूल भाई ने एक्सपेरिमेंट करा था एक जेम्स ये प्रेस्कॉट जूल। हाँ इसने ये एक्सपेरिमेंट करा था कि इसने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स भी बनाया है। हाँ आई थिंक दे आर रेफरिंग टू दिस ओनली एंड खास टाइम स्पेंड करने की जरूरत नहीं है हमें लेकिन फिर भी देख लेते हैं एक्सपेरिमेंट क्या है ये आई थिंक इज जस्ट ये रहा क्रैंक यहाँ से घुमा रहा है क्रैंक हैंडल ये वेट है जो ऊपर जा रहा है ये थर्मोमीटर है in this experiment a metal test body a friction cylinder is rotated and heated by friction due to tensed band of synthetic the mechanical equivalent of heat is determined by from the mechanical work and the heat release deduced from the increased temperature तो ये अच्छा। क्रैंक हैंडल है कुछ घुमा रहे हैं और एक फ्रिक्शन सिलेंडर है ये वाला ये वेट है जो ये क्रैंक हैंडल से हिल रहा है ये थर्मामीटर है टेम्परेचर नाप रहा है इसका सिलेंडर का या द वर्क विल गेट कन्वर्टेड इनटू थर्मल एनर्जी और वो हीट हो जाएगा सिलेंडर और उसका फॉर्मूला होगा Q इज इक्वल टू एम सी डेल्टा टी अच्छा। आई थिंक ये मैकेनिकल इक्विवेलेंट जो बोल रहा है इट इज जूल इक्विवेलेंस ओनली दैट वन वन कैलोरी इज 4.2 जूल्स ये जो नंबर ढूंढा गया ना 4.2 in joule separators the gain in the paddle wheels energy from the energy gained in dropping the weight the potential energy lost heat क्योंकि remember is only in calories heat is calorimetry है ना सब्जेक्ट का नाम तो ये कैलोरीज
So how do you establish a quantitative relationship between heat and work done in the joule? So that relationship इससे मालूम चला. जूल के लॉ से. हाँ मतलब इस एक्सपेरिमेंट से इक्विवेलेंस निकाल ली उन्होंने कि 1 कैलोरी हीट actually is equal to 1 joule. हाँ ये रहा. Let me just show you the exact sentence which thing was not coming through क्योंकि एक्सपेरिमेंटल डिटेल की जगह आई थिंक कंक्लूजन बताना ज्यादा जरूरी है कि वो एक्सपेरिमेंट से जो फ्रिक्शन है उससे वो सिलेंडर हीट हो गया तो हुआ क्या उससे भी. आई थिंक दैट स्टेटमेंट शुड बी क्लियर दैट यस. It was not until 1850, however, Joule performed a variety of experiment when he converted a carefully measured of quantity of work through friction into carefully measured quantity of heat. So work done is that mechanical work of moving that वो जो घुमा रहे हैं ना गोल गोल ऊपर हमने ये क्रैंक हैंडल लगा रखा है ये वाला क्रैंक हैंडल ये घुमा रहे हैं हम. That this is your mechanical work and it heats up the cylinder and cylinder undergoes a change of temperature. So हम नाप लेते हैं कि जो वर्क डन हमने जूल में करा था वो ms थीटा कैलोरीज में कितना आ गया. दिस इज व्हाट ही फाउंड आउट. ओके. The joule demonstrated the ratio between the work performed and the heat produced. तो है तो यूनिट कन्वर्जन बट इसने 4.186 ढूंढा था इससे मल्टीपल रीडिंग्स ले लेके. I think let's not waste more time on this. Just you should have an idea that 1 calorie of 4.1184 joules of work, if you do, will produce 1 calorie of heat. Law of conservation of heat ही है energy. That work got converted into heat. अच्छा, मतलब फर्स्ट लॉ से सिमिलर है तो. Hmm. Okay. तो जूल के एक्सपेरिमेंट हैं जैसे अब राइट. सो यू हैव अ जूल एक्सपेरिमेंट गोइंग ऑन एंड so let's say you have a joule experiment going on, okay, and you have a 20 kg fall. There's a mass, sorry. Okay, so there is a mass of 20 kgs and it undergoes a fall of 1.5 meter. And condition is this is happening at constant velocity. So the kinetic energy is constant. There is a fall at constant velocity. And what is happening is it is stirring the water कैलोरीमीटर. तो पानी भरा हुआ है कैलोरीमीटर के अंदर और उसके अंदर एक मास गिर रहा है. दैट मींस वर्क इज बीइंग डन एंड यू नो दिस मास इज एंटरिंग दैट वाटर. स्टरिंग होती है ना जैसे हाथ से हम स्टर करते हैं कॉफी मिक्स करते हैं स्टरर होता है जैसे. तो हाँ. तो ऐसे ही मास जो है वो पानी को स्टर कर रहा है. और ये दिया हुआ है कि जो कैलोरीमीटर का जो इक्विपमेंट है ये वाला ओके दिस कैलोरीमीटर is made up of some material. तो तुम्हें यही नहीं पता होगा वाटर इक्विवेलेंट क्या होता है. Okay, the water वो. equivalent of this is given to be 2 grams. Okay, it is 2 grams of it's the material of calorimeter may be made up of anything, but the water equivalent is 2 grams and it contains 12 grams of water itself. The question is how much mechanical work, what is the value of J for a temperature raise of 5 degrees? So it undergoes a raise of 5 degrees. Okay. Question is what is J, which is the mechanical uh, equivalent of heat. वही जो experiment है mechanical equivalent. Right? We started with this topic, right? The
mechanical equivalent of heat. The mechanical equivalent of heat is 4.2 joules, 1 calorie. That's called mechanical equivalent of heat, 5 degrees. I'll tell you what is the water equivalent of a calorimeter. अभी पढ़ेंगे हम water equivalent क्या होता है. Okay, but this is a calorimeter. It is made up of some material, but its heat, which it मतलब इसका कुछ मास होगा अपना कैलोरीमीटर का, और इस कैलोरीमीटर ने भी कुछ हीट एब्जॉर्ब कर ली होगी. तो हम क्या करते हैं, कितना पानी उतनी हीट एब्जॉर्ब करता. मान लो इसका x ग्राम वेट है और इसने कुछ हीट एब्जॉर्ब कर ली, तो हम पता लगाते हैं कि वो पानी होता तो सेम हीट एब्जॉर्ब करने के लिए कितना ग्राम पानी चाहिए होता. वो होता है वाटर इक्विवेलेंट ऑफ अ कैलोरीमीटर. कैलोरीमीटर ने मान लो हीट एब्जॉर्ब करी 10 कैलोरीज और वो 1 ग्राम का था, तो हम पता लगाते हैं कि कितना ग्राम ऑफ पानी फॉर द सेम टेम्परेचर चेंज उतनी हीट एब्जॉर्ब करता. तो उसको फिर बोलते हैं वो जो एल्यूमिनियम है उसका इक्विवेलेंट मास पानी का, कन्वर्जन यूनिट की कन्वर्जन की. 1 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम raises its temperature by 10 degrees and absorbs 80 calories. तो हम बोलेंगे अच्छा 80 कैलोरीज रेज हुई, 10 ग्राम हुआ, तो भैया पानी होता तो कितना होता. तो फिर हम इसको इक्वल टू एम एस थीटा डाल देते हैं और एस की वैल्यू 1 डाल देते हैं और थीटा सेम रखते हैं, तो एम ऑफ वाटर निकाल लेते हैं क्योंकि एस ऑफ वाटर इज 1. तो 80 कैलोरीज को हम एम एस थीटा डाल देते हैं और पानी का वेट आ जाता है उससे. तो हम बोलते हैं कि दिस एल्यूमिनियम कैलोरीमीटर बिहेव्स, इज नाउ वाटर. तो जो भी हीट आपके एक्सपेरिमेंट में आई है वो ना केवल इस पानी को मिली है बल्कि ये भी पानी ही है. तो टोटल जो पानी अवेलेबल है जहाँ वर्क डन का इम्पैक्ट नजर आ रहा है वो 12 ग्राम प्लस 2 ग्राम. तो उन्होंने पहले ही हमें वो दे दिया कि दिस इज वाटर इक्विवेलेंट. नहीं तो मटेरियल देना पड़ता है इनको कैलोरीमेट्री का, हम उसकी अलग से हीट निकालते हैं. तो बहुत सारे क्वेश्चंस में यू विल सी that they convert the calorimeter material into water equivalent to make the life simpler. थोड़ा थोड़ा समझ में आया या नहीं आया थोड़ा सा भी? नहीं, थोड़ा सा आ गया। आ गया ना. तो एक कन्वर्जन है कि भैया ऐसे कर लो आप. तो नाउ द क्वेश्चन इज कि हमने कैलोरीमीटर को फॉल जो है उसका करवाया है हमने, फॉल हाइट. सो जो पानी अंदर गया है वो इधर से शुरू हुआ था, 1.5 मीटर अंदर तक चला गया है वो. सो द 1.5 मीटर इज द मास which falls through the calorimeter. Okay, so all the way this is all water. ये यहाँ पानी है और ये 1.5 मीटर अंदर चला गया. तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी लॉस कितनी हुई, mgh, क्योंकि मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ वर्क निकालना है हमने. एम जी मतलब हमें निकालना है वो रेशियो क्या होती है. एम जी एच इज द लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी दैट हैज टू गेट कन्वर्टेड इनटू व्हाट, एम जी एच दैट हैज टू गेट कन्वर्टेड इनटू हीट. अब हीट के लिए अपने पास 14 ग्राम पानी है हाँ। इनटू, और चेंज इन टेम्परेचर कितना है हमारा, 5 डिग्रीज डेल्टा टी. सो द वर्क विच इज यहाँ पे इसमें स्टोर्ड था इन द फॉर्म ऑफ एम जी एच, नाउ इट कम्स डाउन and loses the potential energy which gets converted into work done, and that work done is now getting converted into heat which is ms theta now. सारा पानी है, 14 ग्राम पानी, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर एस. तो अब देखते हैं क्या आता है. mgh हमारा आया कैलकुलेशन करने पे कितना ग्राम है, 20 किलो. इसको डाल लो आप 10 g को, और हाइट को डाल लो 1.5 इज इक्वल टू
200 इंटू 1.5 कितना होता है? 200 200 इंटू इंटू 1.5। 1.5 300। तीन 300 200 जूल। इंटू, हाँ 300। 300। और कैलोरीज कितनी आई हमारी, कैलकुलेट करके देख लेते हैं हम यहाँ पे। कैलोरीज भी निकाली थी मैंने कहीं पे, 1470। तो 300 नहीं आएगा, 30 आएगा। क्यों? 1 मिनट। अच्छा नहीं, ठीक है, 300 ही है। 300 है ना, और कैलोरीज कितनी आ रही है, 70। तो हाँ, 70 कैलोरीज किससे बनी? 300 जूल से। 30 जूल से, 300 जूल से। तो एक कैलोरी पैदा करने के लिए कितने जूल यूज है? तो 1 कैलोरी पैदा करने के लिए 74, नहीं सॉरी, 300/70। 300/70। 7 4 28। हाँ, 4.2। टू। सो 4.2 जूल ऑफ वर्क per calorie, and this is the concept of the mechanical equivalent of heat. ओके। Ratio of the work which is done and the calories which are produced always is 4.2. अच्छा। उस एक्सपेरिमेंट में यही करा गया था। ठीक है। हाँ। Okay. Now let's say you have a situation where there is a change in potential energy of a body in calories. So PE डेल्टा पोटेंशियल एनर्जी इन कैलोरीज चेंज हुई है, आपको निकालनी है, सॉरी, डेल्टा पीई व्हेन द बॉडी फॉल्स फ्रॉम 10 किलोग्राम ऑफ अ बॉडी फॉल्स फ्रॉम अ हाइट ऑफ थ्रू अ हाइट ऑफ 41.8 मीटर्स। तो आपका डेल्टा यू कितना हो जाएगा, इक्वल टू एम जी एच, 10 जो इंटू 10 इंटू 41.8 जूल आ गया। हाँ, जो ठीक हो है। जाएगा। और आपको मालूम है कि वर्क डन is proportional to heat and work done is equal to JH। निकालना आपको ये है कि कैलोरीज में आंसर निकालना है, तो बेसिकली वर्क डन तो आपने निकाल ही लिया, 100 इंटू 41.8, और ये जे एग्जैक्ट वैल्यू इज 4.18 बाय द वे, इंटू एच। तो एच इज इक्वल टू 100, 4.2 नहीं होती, रफली होती है वो, 4.18 मोर एक्यूरेट है। 100 इंटू 41.8 डिवाइडेड बाय 4.18, 10,000। यूनिट कन्वर्जन ही है बेसिकली, और क्या करा है, दैट these many joules are equivalent to how many calories divided by 4.18, और क्या आंसर, लिखने भी की क्या जरूरत है कुछ भी, ठीक है। राइट। बट ये इक्विवेलेंस दिखाने का तरीका है कि जब भी आप कोई क्वेश्चन करें और आपको कुछ यूनिट्स कैलोरीज में दी हो, कुछ यूनिट जूल्स में दी हो, तो कन्वर्ट कर लेना बेसिकली। वैसे तो इसका बैकग्राउंड है कि द हीट प्रोड्यूस्ड बाय सम मैकेनिकल वर्क, heat is in calories, heat can be in joules also. 4.18 joules of work can produce 4.18 joules of heat, but तब कैलोरी और उसका कन्वर्जन के चक्कर में इन्होंने अलग अलग यूनिट दिखाए हैं, रेशियो। Okay, so there is another situation where you have a boy whose mass is 60 kgs, okay, अच्छा। and he is running at a speed of 5 meter per second, हम्म। and he falls down and he skids. He falls down on the ground and he skids through. Uh, Question is how many calories are produced because of the friction between his legs and the floor. So he has a kinetic energy of half mv square. That is a work विच इज contained by him, 1/2 × 16 × 5 का स्क्वायर। right? And so divided by, so whatever you get, half into 60 into 5 square. हम्म। And he says how much heat is produced in calories, divided by 4.2.
इज द नंबर तो ऑफ कैलोरीज 1250 प्लेस्ड। अपॉन 4.2। हाँ बस, दैट्स ऑल आंसर। And where does the heat go? It is entering the flesh of the boy. उसको गर्मी लगेगी ना, वो जब छिलेगा उसका मांस तो। जैसे कितना ब्रूटल क्वेश्चन है ये। हाँ it is. And let's say the heat is confined to his some volume of his leg, which is 2 centimeter cube. Okay, now it is given that the density of his flesh is ओहो। given to be 950 kilograms per meter cube. 2 centimeter इतनी cube होती है। है स्किन की डेंसिटी? हाँ हाँ, श्योर। फ्लैश है, बोन वोन भी मिला के होता होगा कुछ। पानी तो होता है सारा हमारा बॉडी। 70% ऑफ अवर बॉडी इज वाटर। सो ठीक है, 930 पानी के जैसे ही हम। एंड द स्पेसिफिक हीट इज गिवन टू बी 1, पानी की तरह 1 कैलोरी पर ग्राम सेंटीग्रेड। कैलकुलेट हाउ मच इज द rise in temperature of his flesh. So these many calories are produced, divided by 4.2 कर लिया, is equal to m mass, which is volume into density. Volume is known to, density is 930 into 10 raised to power 3 to 10 raised to power 6 into C 1 into delta theta आ गया। नेक्स्ट करें। So there is an electric heater which is being used nowadays in cold weather. So the power rating is given to be 1.8 watts. Okay, and it supplies heat to a tank of water. कितना टाइम लगेगा 20 किलो पानी को गर्म करने में by a temperature of 50 degrees, 60 degrees, sorry. Assume there is no heat loss to the surroundings and 100% efficient heater is available to you. So you know what is the C of the specific heat of water? 1 कैलोरी। हाँ मतलब जूल में लेंगे क्योंकि हम सब ये वॉट्स हैं। तो पावर इज गिवन बाय वर्क डन बाय इलेक्ट्रिसिटी पर यूनिट टाइम, and so let the time taken by the this instrument to raise the temperature of 20 kg by T. So the total power consumed by the instrument will be W into T. Sorry, P into ओके। T. वर्क आ जाएगा ना। ये तो 10th में भी पढ़ते हैं ना, वर्क अपॉन टाइम इलेक्ट्रिसिटी में, हाँ वॉट्स का लिखते हैं। मतलब। हाँ। तो P इंटू टी इज इक्वल टू क्यू इज इक्वल टू एम इंटू एस इंटू थीटा 60 डिग्रीज। ओके। यू हैव टू फाइंड टाइम। So P into T is equal to M into S into 60 is equal to 20 into 1000 ले लेंगे वाटर की स्पेसिफिक हीट। 1000 और फिर इंटू 60 डिग्री। हाँ 60 डिग्री। P पता है, और मैं पी पता है 1.8 है, तो T वन आ पॉइंट जाएगा एट डिवाइड कर दे। आंसर। फिर अच्छा। उसको नहीं। सेकंड्स में लिख लो या कैसे कर लो। सेकंड्स में छोड़ना है सेकंड में रख लो, घंटों में रखना है घंटों में रख लो, क्योंकि ये तो बहुत ही छोटा है। हमारा गीजर जो होता है दैट इज 2000 वॉट्स। अच्छा 2000। हाँ ये क्या है 1.8 वॉट, ये तो मोबाइल चार्जर है। मोबाइल चार्जर 20 किलो पानी तो कितनी देर में मोबाइल चार्जर के साइज का इतना सा डाल रखा है। आई थिंक मोबाइल चार्जर, भाई एक बल्ब 40 वॉट का होता है, 40 जूल पर सेकेंड। ठीक है। अच्छा। हाँ तो कितनी देर लगेगी, पता नहीं कितने घंटे लग जाएंगे इसको करने में। दिन ही लग जाएगी एक तरह से, देख लो काफी ज्यादा आ रहा है। हाँ
सेकंड्स में करो फिर आवर्स में करो, 7-8 घंटे लग रहे हैं, 7-8 घंटे। ओके, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। So this was to make you, not that this was very complicated, but just a word mechanical equivalent of heat should not worry you. You know, mechanical equivalent of heat is nothing but 4.2 joules. 1 calorie is equal to 4.2 joules. That's all. But you can see now the physical क्या हो रहा है. Potential energy is getting into heat. बंदा गिर गया, चोट लग गई जी, उसकी हाफ mv² into heat. वाटर स्टरिंग हो रही है, ऊपर से गिर रहा है, हीट, सब हीट में ही कन्वर्ट हो जाता है. बट फाइनली वो 4.2 यूज करना पड़ता है कन्वर्जन के लिए. ओके. भाई इसमें भी इफ यू अगर हमने पिछले पेज पे वाटर को 1 कैलोरी लिया था पर ग्राम पर सेंटीग्रेड, और अब हम उसे बोल रहे हैं कि जी एमएस थीटा लेना है, तो ये 1 कैलोरी की जगह 4.2 ले लेंगे ना हम, एमएस थीटा में. यहाँ पे ये जो मैंने 1000 लिखा है, इसका ये लेकिन 4.2. ये 4.2 है ना बेसिकली, तो यस. बस. तो अगर 1 लिखना है, 1 के लिखना है एस को, तो फिर पानी का जो ये है 2, इसको 2000 लिखो. फिर 2 किलो कितना, 20 किलो पानी है, 20,000 लिखो. फिर लेकिन एंड में कन्वर्ट करने के लिए जो वर्क डन है उसको 4.2 से तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. अच्छा. भाई ये तो सारा जूल में है ना. इलेक्ट्रिसिटी का जो वर्क है वो तो जूल में आ रहा है. राइट साइड पे अगर मैं कैलोरीज में ले रहा हूँ 1 कैलोरी, तो इसको फिर राइट साइड पे मुझे करना तो पड़ेगा ना 4.2 से एंड में. एमएस थीटा 20 kg, 20,000 ले लिया, ये 1 ले लिया पानी का, ये 60 ले लिया. बट इनकी इक्विवेलेंस के लिए मुझे 4.2 तो लगाना पड़ेगा ना. ये दिस इज वर्क डन, दिस इज क्यू, सो डब्ल्यू इज इक्वल टू जे क्यू होता है ना. जे तो लिखना पड़ेगा. ये कैलोरीज में आएंगे, ये जूल में. कैसे करूंगा मैं कन्वर्जन इक्विवेलेंट्स 4.2 से? क्या यूनिट चेंज करना पड़ेगा ना, दोनों साइड जूल होने चाहिए. ठीक. आ गया समझ में? हम्म. यूनिट कन्वर्जन बेसिकली, दैट्स ऑल. एक साइड कैलोरी है, एक साइड जूल है, तो इक्विवेलेंस कैसे एस्टेब्लिश करते हैं? बाय अ फैक्टर ऑफ 4.2. This much work or these many calories, if you have to convert it into joules, divide by 4.2 and vice versa. If I give you 10 calories of heat, then what was the work done? 10 into 4.2, 42 42 joules. joules. So Q is equal to JW, where J is the equivalent, mechanical equivalent of work done. Sorry, work done is equal to JQ. आगे बढ़ते हैं. कॉन्सेप्ट ऑफ हीट कैपेसिटी. अभी तक हमने एक वर्ड पढ़ा था, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी. स्पेसिफिक. अब हम पढ़ रहे हैं हीट कैपेसिटी, तो अब स्पेसिफिक नहीं है, अब सिर्फ हीट कैपेसिटी है. सो इट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ द होल बॉडी. पर यूनिट मास नहीं लेना, बस होल बॉडी लेना है. थ्रू
0 degree or 1 Kelvin. So heat capacity is equal to M into C into delta 1. ये 1 डिग्री है, 1 डिग्री और 1 केल्विन। स्पेसिफिक हीट में तो पर डिग्री होता है ना, कहीं से भी कहीं ले लो। इसमें एम सी डेल्टा टी इज फिक्स्ड, 1 डिग्री चेंज ऑफ टेम्परेचर, दैट्स ऑल। हम तो पढ़ रहे थे ना हीट कैपेसिटी, हीट टोटल हीट सप्लाइड इज हाउ मच, एम इंटू सी इंटू डेल्टा टी। दिस वाज व्हाट, specific heat capacity per unit mass per unit temperature. Now put delta T is equal to 1. So Q is equal to M into C. This Q now, because of 1 degree, is known as heat capacity of the body. So if you are given heat capacity of the body, it is the total heat required by the body to raise its temperature by 1 degree. It is basically a type of Q, but when the body's temperature raises by 1 degree only. That's all. If you have two bodies having different material but same heat capacity, then what will you write? You will say, okay, you are different materials, but your heat capacity is same. Your masses are also. So first body has a mass Ma and its heat capacity is Sa, specific heat capacity. दूसरी बॉडी है, उसकी मास है Mb, उसकी स्पेसिफिक हीट है Sb। डेल्टा टी दोनों के लिए 1 होगा, दोनों की हाँ हीट जी। कैपेसिटी बराबर है। तो Ma इंटू एस ए इज इक्वल टू Mb इंटू Sb। हीट कैपेसिटी, हीट कैपेसिटी इज द टोटल हीट रिक्वायर्ड टू रेज बाय 1। तो भैया एल्यूमिनियम का कुछ दे दिया 2 किलो, बोला इसका बताओ जी ये कितना, 1 डिग्री बढ़ाने के लिए कितना इसका हीट यूज होता है। तो हमने लगा इसका मेरे को स्पेसिफिक हीट बता दो, मास बता दो। बोला जी मास है 60 किलो, स्पेसिफिक हीट सो मच सो। बोला ठीक है, स्पेसिफिक हीट मल्टीप्लाइड बाय मास मल्टीप्लाई बाय 1 डिग्री। Specific heat is material specific. Heat capacity is not material specific. It is just the capacity of the body to absorb heat to raise its temperature by 1 degree. It's basically thermal capacity, so to say. It has nothing to do with per gram, per degree. It is just per degree. Finish. So how do you link these two? So one is, so you have Q is equal to ms delta T. But if you do Q by delta T equal to M into S, this becomes heat capacity, M into S. So the heat supplied to raise by 1 degree. मतलब टोटल अगर डेल्टा टी है उससे डिवाइड कर लो पर डिग्री बेसिस पे जो हीट सप्लाई हुई है बॉडी को, उसने एब्जॉर्ब करी है 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने के लिए। इस केस में मान लो Q वाज अ हीट सप्लाइड टू द बॉडी टू रेज इट्स टेम्परेचर बाय डेल्टा टी। तो बोला जी हाउ मच इज द हीट सप्लाई टू रेज इट्स टेम्परेचर बाय 1 डिग्री। तो बोला जी डेल्टा टी के लिए Q चाहिए तो 1 डिग्री के लिए Q बाय डेल्टा टी। M into S represents the heat capacity. This is specific heat capacity. ये मटेरियल स्पेसिफिक है। So heat capacities can be same for many bodies, right?
किसी का मास बड़ा, स्पेसिफिक हीट छोटी, किसी का मास छोटा, स्पेसिफिक हीट बड़ी, प्रोडक्ट कैन बी सेम। मेक सेंस या गया ऊपर से सर के? ना ना, समझ आ रहा है। टर्मिनोलॉजीज हैं और कुछ नहीं है ये। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, अच्छा जी, वो तो एल्यूमिनियम का होता है जी, चलो पता है। अगर मैं आपको बोलूं जी ये एक एल्यूमिनियम का टुकड़ा है, तो दिस इज योर एल्यूमिनियम, द मास इज 60 kgs and the heat it has absorbed is 4200 joules, and the temperature the raise is because of this 60 kg का जो temperature raise है, that is 100 degrees, and the specific heat of is some x, right? So you will say, okay, I will say what is the heat capacity, so you will say, okay, heat capacity is 4200 divided by 100, 42, that's all. Total heat divided by total change per degree. 100 डिग्री के लिए हीट चाहिए थी 4200, 1 डिग्री के लिए चाहिए 4200 बाय 100। ये आगे जी हीट कैपेसिटी। स्पेसिफिक हीट है समथिंग विच इज मटेरियल स्पेसिफिक पर ग्राम, इसमें मास नहीं आता हीट कैपेसिटी में। अच्छा। हीट कैपेसिटी इज m into s, whereas specific heat capacity is, so this is q by delta t, but specific heat तो ये होती है q by delta t and then also m। फर्क हो गया ना? ये हीट कैपेसिटी है, ये स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है। मास को भी नीचे ले गया मैं यहाँ पे, पर ग्राम, इसमें पर ग्राम नहीं होता हीट कैपेसिटी में। आ गया समझ में? आगे बढ़े? हाँ जी। यस। ओके, नाउ ये लेट्स कम। हाँ बोलो, ठीक है। बोलो बोलो। ये सब कोई बहन? कैलोरीमेट्री है ना? हाँ है, और बड़े मजेदार न्यूमेरिकल होते हैं इसके अंदर। ओके, लेट्स कम टू द कॉन्सेप्ट ऑफ वाटर इक्विवेलेंट। वाटर इक्विवेलेंट पहले ही मैंने थोड़ा बहुत बता ही दिया था। हाँ, हिंट दी थी। ओके, बट लेट्स लुक एट इट ऑन अ फॉर्मल बेसिस व्हाट इट इज। सो एक बॉडी है, उसका वाटर इक्विवेलेंट होता है, हर बॉडी का एक वाटर इक्विवेलेंट होता है, राइट? सो वाटर इक्विवेलेंट इक्विवेलेंट। of a body is defined as the mass of water which would absorb or evolve the same amount of heat as done by the body in rising or falling through the same range of temperature। अगर पानी होता उतने ही टेम्परेचर से चेंज होता तो उसका कितना मास होता? हीट सेम है, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय W, द वाटर इक्विवेलेंट। क्योंकि जब एक्सपेरिमेंट होते हैं कैलोरीमेट्री के, तो कैलोरीमेट्री का बर्तन जो होता है वो खुद भी हीट ले लेता है, तो इसीलिए उसको वाटर इक्विवेलेंट में कर लोगे तो कैलकुलेशंस बिकम वेरी इजी। यू कैन ऐड द वाटर एंड द वाटर इक्विवेलेंट ऑफ कैलोरीमेट्री डायरेक्टली। सो लेट्स से यू आर गिवन अ बॉडी whose mass is m, this is the mass of a body जिसका वाटर इक्विवेलेंट निकालना है हमने, मास ऑफ द बॉडी। ओके, स्पेसिफिक हीट ऑफ द बॉडी इज C, स्मॉल c या s जो भी पसंद आता है। दिस इज द स्पेसिफिक हीट ऑफ द बॉडी पर ग्राम
per degree specific heat of the body. वाटर इक्विवेलेंट भी बॉडी का ही निकालना है अपने को, और इसका चेंज इन टेम्परेचर राइज मान लेते हैं, इट एब्जॉर्ब्स, इज राइज इन टेम्परेचर इज दिस मच। तो टोटल कितनी हीट मिल गई इसको? दैट इज m इंटू एस इंटू डेल्टा थीटा। ये तो मास ऑफ द बॉडी है, हमें तो निकालना है कि अगर ये पानी होता तो कितना होता। तो ठीक है, मतलब वाटर इक्विवेलेंट निकालना है। तो बोला Q सेम रहेगा, वो वाला मास जो पानी का होगा उसको बोलते हैं वाटर इक्विवेलेंट, अच्छा। उतनी हीट एब्जॉर्ब कर रहा है, वो मास का नाम है वाटर इक्विवेलेंट। क्योंकि मास ऑफ वाटर, इक्विवेलेंट वाटर इज कॉल्ड एज वाटर इक्विवेलेंट इनटू वन, रेंज ऑफ टेम्परेचर सेम चेंज करनी है, डेल्टा थीटा। सो एम एस डेल्टा थीटा, ये एल्यूमिनियम हो सकता है, एल्यूमिनियम का मास, स्पेसिफिक हीट ऑफ एल्यूमिनियम, ये डेल्टा थीटा इज इक्वल टू डब्ल्यू इंटू डेल्टा क्यू। वन क्यों? क्योंकि वाटर, वाटर इक्विवेलेंट है, तो वाटर का मास ले लिया डब्ल्यू, एस होता है वाटर का वन, तो दोनों तरफ से डेल्टा थीटा का था, डब्ल्यू इज इक्वल टू एम इंटू एस। सो दिस इज द मास ऑफ द वाटर which will absorb the same heat as mass of the body into its specific heat। वो यहाँ तो वन है लेकिन वो नजर नहीं आ रहा, तो ये ग्राम्स में आ गया आंसर। नाउ यू नो कि अगर आपको एक बॉडी दे दें जिसकी स्पेसिफिक हीट अवेलेबल हो, जैसे कॉपर है कैलोरीमेट्री का, और कैलोरीमेट्री का मास अवेलेबल है कैलोरीमीटर का, और आपको वाटर इक्विवेलेंट निकालना है, मतलब वाटर का मास निकालना है जो उतनी हीट एब्जॉर्ब कर लेगा एक्सपेरिमेंट में। तो कैलोरीमीटर का वेट लो, मान लो 40 ग्राम, कॉपर का दिया हुआ 2 कैलोरीज पर डिग्री पर ग्राम, तो भैया 80 ग्राम्स ऑफ 80 ग्राम इज इट्स वाटर इक्विवेलेंट, मतलब 80 ग्राम जो है। तो कैलकुलेशन करोगे कैलोरीमेट्री में, पानी डालोगे 100 ग्राम प्लस 80 ग्राम पानी और ले लेना, और तब जो भी हीट सप्लाई कर रहे हो, वर्क डन कर रहे हो, वो 100 ग्राम पानी को भी मिलेगा और 80 ग्राम वाटर इक्विवेलेंट ऑफ कैलोरीमेट्री को मिलेगा, तो टोटल 180 ग्राम माना जाएगा पानी अंदर। अच्छा, और यू कैन सी समझ गया। इट इज वेरी सिमिलर टू द थर्मल कैपेसिटी, मतलब m इंटू एस ही आ रहा है। यही फॉर्मूला हम्म। जो है अभी हमने ऊपर जब पढ़ा था हीट कैपेसिटी, यही तो था m इंटू एस। ये पानी के रिलेशन में। ये पानी के, हाँ पानी के रिलेशन में है जब, लेकिन हाँ। है वही हीट कैपेसिटी, हीट कैपेसिटी पानी की है, ठीक है। मटेरियल उसमें पहले ही हमने बोल दिया था, वो फर्क नहीं पड़ता मटेरियल कौन है, क्योंकि m इंटू एस इज मोर इम्पोर्टेंट इन हीट कैपेसिटी। सो द हीट कैपेसिटी और द थर्मल कैपेसिटी और वाटर इक्विवेलेंट are one and the same thing. Only thing is the context is water in the case of water equivalent. कोई शक शुबा दिमाग में? टर्म्स बहुत सारी हैं लेकिन बहुत ही बचकाना और इजी हैं। क्या करने चाहिए? हैं? मिस्टर इमादुल को एक डाउट है। क्या? ये तो पता नहीं है क्या डाउट है। लाइव चैट खोल रखी है क्या? एनीवे, लेट्स डू सम न्यूमेरिकल्स नाउ। एक आध करते हैं, काफी हमने टाइम इस पे लगा लिया थ्योरी पे, और अब आ गया टाइम हमारा न्यूमेरिक न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करने पे। फेस चेंज अभी मैं नहीं करवा रहा। फेस चेंज वो है जो 9th स्टैंडर्ड में आता है ना, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन और फ्यूजन वाला, 80 कैलोरीज और 540 वाला, स्टीम वगैरह का, याद है? 9th में पढ़ते हैं, हाँ। या नहीं याद है?
क्या मतलब? नहीं। नहीं याद है? बर्फ डाल देते हैं पानी के टाइम पे अंदर। पता नहीं क्या था। ओके, पहले जस्ट गेट कंफर्टेबल विद दिस। बहुत इजी है ये कैलोरीमेट्री। देन वी, नेक्स्ट टाइम once we practice this, then we will go to that. इन्होंने शुरू में मिक्सिंग कर दी है, तो मुझे डर था। कुड हैव वेटेड। क्या? अरे क्वेश्चन बना देते हैं पहले से ही, वो मल्टीपल कॉन्सेप्ट्स वाले, जिसमें स्टेट चेंज भी डाल दिए, फिर लिक्विड टू स्टीम, लेटेंट हीट भी पढ़ा दी है, फिर क्वेश्चन पूछना शुरू कर दिए हैं। भैया तुम पहले वो तो पूछ लो जो नॉर्मल वाले हैं, थर्मल प्रॉपर्टीज के। सीधा आइस पे आ गए। स्पेसिफिक हीट के क्वेश्चन गायब कर दिए। पेज ही खाली है। ठीक है, हमारे पास भी बड़े सारे तरीके हैं। ठीक है, मिल गया। सबके फेवरेट होते हैं वो आइस वाले क्वेश्चन। आइस वाले हम्म। इजी होते हैं या फिर? बड़े इंटरेस्टिंग होते हैं, मतलब सोचना पड़ता है थोड़ा सा कि हाउ इट ऑल वर्क्स आउट। आइस, स्टीम और पानी का मिक्सचर होता है, मतलब तीन स्टेट में होता है, कैसे हीट फ्लो कर रही है उनके आपस में। तो दैट थॉट प्रोसेस हैज टू बी क्लियर, हाउ द इक्विलिब्रियम इज अटेन्ड एंड ऑल दैट। इक्विलिब्रियम, अच्छा। मतलब थर्मल इक्विलिब्रियम, थर्मल, ओके। मैं अदरवाइज हीट केमिकल विल सोच कंटिन्यू रहा था टू फ्लो। कि मैं भी इक्विलिब्रियम चैप्टर पढ़ा था मैंने। यो, so let me just paste 2-3 questions and we will practice in the next class. अभी तो क्वेश्चन कुछ खास दिखे ही नहीं। हमने वैसे ही सॉल्व क्वेश्चन बहुत सारे अंडरस्टैंडिंग के लिए देख ली, लेकिन
धूप आगे लग रहा है मुझे. Yes. Finally I will be able to go and do weight training. Yes. I first climbed 44 stories Okay. and then start weight training. 44 stories. हमारे यहाँ मशीन है, वो बताती है कितने आपने फ्लोर क्लाइम करे हैं. 20 तो मिनट में चढ़ जाता हूँ मैं 44 अच्छा, क्या बात है. माला. Nice. 44 माला की बिल्डिंग. बड़े पत्थर भी 20 मिनट नॉन स्टॉप, नो वाटर ब्रेक. अच्छा. सही है. तुम्हें पूरे Grind. सिलेबस का पेपर भेजो मैथ्स का. मैं भेज दो. you should start doing complete maths papers also. सारा कर ही लिया. भेज दो. टेस्ट करना अलग होता है, क्या. टेस्ट पेपर करना अलग होता है. हाँ, हाँ. टाइम देख के इतने टॉपिक जो हैं सर पूरे के मैं पूरे. मैंने मैथ्स का पेपर हाफ ईयरली का 1 hour 30 minutes में करा है. हम्म, ठीक कितना था? 70 और 70 out of 80. हाँ तो कम है ना यार. आउट ऑफ 50 अगर 70 आ गए तो तुम जीनियस हो. नहीं, 70 out of 80. अच्छा जी, 1 hour तुम 30 देखूंगा. minutes. सब आइस, ऑल क्वेश्चंस आर आइस. Nice. पता नहीं क्या आइस से इनको वो है. कैलोरीमेट्री के क्वेश्चन का मतलब है आइस दे, आइस डाल दो. राइस को बर्फ गर्म के कर बिना दो. कोई क्वेश्चन नहीं हो सकता क्या? सर मैं क्या करता हूँ, आइस लेता हूँ और उसको पैन पे गर्म करता हूँ. किसको? आइस को. जब तक उसका पूरा वेपर ना बन जाए. बट तुम्हारे पास वो मेथड नहीं है ना कुछ हीट वीट नापने का. नहीं, वो नहीं है, बट रुको सुनो तो सही. तो जैसे ही वो जो पैन का जो बैक एंड होता है ना, हाँ. उसमें मैं पानी डालता हूँ, जो स्टीम, बहुत सारी स्टीम निकलती है. अच्छा. मजा आता है करने में. धुआं निकलता है बहुत सारा. काफी गर्म हो जाता है वो. दिस इज वियर्ड मैन. एक भी क्वेश्चन जो है उस पे नहीं है. एक तो होना चाहिए था यार, मतलब एक भी. इतनी हमने उस पे दिमाग खराब करा अपना. और कार्नेट इंजन, आइस, हर क्वेश्चन में आइस है.
नहीं करते हम आइस का और क्वेश्चन। कितना बचा है चैप्टर? वेव्स, एसएचएम, हाँ, थर्मोडायनेमिक्स, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। नहीं नहीं, ये थर्मल प्रॉपर्टी कितना बचा है? एक और चीज, एक टॉपिक और बचा है। अच्छा, सही है। वही आइस वाला। आइस, अच्छा। इसमें वाकई में काफी क्वेश्चन है। हाँ रिपीटेटिव है, लेकिन हाँ होते हैं। कुछ करने को होता है उसके अंदर, इसमें तो कुछ करने को। नहीं दूसरी रखा ना लड़की के हाल रखो ना अपने वास्ते और सबका ना अलग रखा है तो कष्ट है ये तो होवे नहीं फिर तो बंदा क्या एसएचएम तो आसान सा चैप्टर है। वेव्स होता है थोड़ा सा लंबा चैप्टर। हाँ देख मेरे भी बड़े अच्छा से सब बेसन आज फिर मैथ का टेस्ट। फुल हाँ कोर्स। अच्छा मोटे अपने से कोने का है ठीक है। नहीं उन्हें हाँ You should नहीं start करवा doing it लेना now, otherwise you will forget. शुगर करती हो अच्छा शुगर ज्यादा है ना इससे काफी टच में रहोगे तुम, और तुम्हें दिख हाँ जाएगा मेरी कि अब तुम्हारे शुगर कौन है से नहीं टॉपिक उड़ गए दिमाग तो से। उन्होंने पहले ठीक है। डेट देती आप तो शुगर टेस्ट की शुगर 200 है ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ यार एक 200 ਤੋਂ क्वेश्चन तो कम दिख होएगी जाए ਤਾਂ यार, ये सारे आइस वाले भर दिए सारे। आइस वाले लड़के करने ने के बाद ही ये सारे एक साथ कर लेंगे ना न्यूमेरिकल्स। वही लग रहा है कि पहले आइस, पहले आइस कर लेते फिर न्यूमेरिकल्स करेंगे। कैलोरीमेट्री। ठीक है, तो लेट्स डू दिस। हाँ लोग लेट्स डू कैलोरीमेट्री फिनिश, मतलब पूरी कैलोरीमेट्री करते हैं हम्म। और न्यूमेरिकल प्रैक्टिस उसके बाद करते मेरे हैं। तो फिर तो कोई बहुत कोई डिप्रेशन रहेगा हुआ नहीं ना ढूंढने का चक्कर। मेरी था हम्म, 3-4 फिर तो सारे महीने क्वेश्चन अपने शुगर स्कोप में वो ही भी है। कर लेते। मैं भी ना गोली नहीं खाई ठीक ठीक है, है, मैं हाँ कुछ नहीं मैं चलो सी यू टुमारो देन, बाय। कोई चीज बाय।